Hello everyone, welcome back to my channel and I'm Ghazalaha and I hope you all are doing good. So आज we are talking from Baku airport. So आज का video is not about makeup fashion, it's a vlog and this is the first time that I'm doing a vlog. So currently we are at Baku airport and the temperature is 10 degrees Celsius and also here it's raining. So I'm from Delhi. Delhi में almost 23 degrees Celsius temperature है. So एक दिन में almost 13 degree Celsius decline होगा. So let's see how my body deals with this cold. And yeah, so now my cab has come and now we are heading towards our hotel. So since अभी बहुत रात हो गई है, कल सुबह से हमारा टूर स्टार्ट होगा. So रूम जाते हैं, रूम देखते कैसा है, रिलैक्स करते हैं. So before I start with day one of vlog, I would like to tell there are two reasons that I shot this vlog. First, we wanted to document this memory. Second reason, हमने इतनी सारी आइटनरी सर्च करी थी, किसी में कुछ कमी थी, किसी में कुछ कमी थी, तो ये जो हमारी आइटनरी जो है पूरी 6 नाइट 7 डेज की, हमने खुद पूरी रिसर्च करके कस्टमाइज की है. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्लानिंग फॉर अजरबैजान ट्रिप इन अपकमिंग ईयर, देन दिस आइटनरी विल रियली हेल्प यू बिकॉज इसमें सारी प्लेसेस है जो आपको बिल्कुल विजिट करनी चाहिए एंड these all places are completely worth it. So do watch this video till the end since after this vlog I'll be sharing very important points that will make a lot of difference in your Azerbaijan trip. So today is the day one of Baku vlog and the first place that we are discovering is this carpet museum. So let's check out किस type के carpets है और क्या price range है. So I'm excited, so let's go together. So now we are at the entrance of Carpet Museum. So this is the ground floor. Ground floor में आपको mini carpets दिखेंगे and उसके लिए कोई charges नहीं है. First और second floor is the main part of this museum जिसके लिए ticket लगती है approximately 12 to 13 मन्नत. So now we are inside Carpet Museum and यहाँ पे बहुत types के carpet है, हर size के, mini and large size, medium size and apart from that बहुत सारी varieties है, बहुत different designs है. So this is the first time that इतने detail में मैं कोई carpet देख रही हूँ. Otherwise I don't have like interest in carpets, but still I'm here and this place is famous for carpet. So let me just show you the clips. Each carpet here tells a story with intricate patterns and vibrant colors reflecting the country's culture and craftsmanship. This is not just a museum about carpets, it also includes display of traditional clothing, textiles and tools used in carpet weaving. Now we are done with the carpet museum and my experience was good. And abhi we are outside the carpet museum and the view is so beautiful, kind of park. It's a walking street kind of a place and the temperature is 8 to 9 degrees Celsius. It's quite cold, but I'm loving this weather. We are at Little Venice. Sundar sa boat ride. Like it's so like calm and serene weather. अच्छी feeling आ रही है बस ये बोलूँगी. So now we have reached the second destination and second destination के लिए we have taken a funicular ride जो बहुत ही amazing and exciting था. And now I'm standing just behind the flaming tower. So the name is flaming tower because मेरे पीछे flaming fire है जो 24/7 light up रहती है. Since वो face कर रहा है उसे, so that's why the name of the tower is flaming tower. And now we are heading towards our third destination which is Highland Park जिसका वे यहाँ से ही निकलता है. Now I have finally reached Highland Park and मेरे पीछे पूरा Azerbaijan का view है and it's breathtaking and it's so beautiful. So now we are at Nizami Street and as per Google this is the world's costliest street and ये आज हमारा पूरे डे का ये लास्ट स्पॉट है and we are trying the famous dessert of this place which is milk baklava. So I'm excited. Let's taste how this. So here I did not realize कि मेरा mic off हो गया है. So now I grabbed my first bite and इसका जो taste था बहुत सारा delicious था, बहुत सारा different था. So baklava is something which I really love and dry baklava मैं दिल्ली में भी खाती हूँ. But this is the first time I had like milk baklava, liquid based baklava and it was so smooth, it was so fine. The moment I had it, it melted in my mouth completely. So this is one of the famous street of Baku and the name of the street is Nizami Street. यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाइब है एंड वीकेंड्स पे तो बहुत ज़्यादा रश रहता है एंड यहाँ पे बहुत सारे हाई एंड ब्रांड के आउटलेट्स हैं प्लस फेमस बकलावा स्टोर्स. आई कम्प्लीटली लव दिस प्लेस. सो टुडे इज़ माय लास्ट डे इन बाकू एंड अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. ब्रेकफास्ट के बाद
जल्दी से निकलेंगे हम. We will be going to Gabala for 2 days. And one thing I want to say, if you're a vegetarian, you should get some dry food kind of thing packed. Because यहाँ पे वेजिटेरियन के लिए फ्रूट्स और सैलड्स ही ऑप्शन है, और यू कैन रिलाई ऑन डेजर्ट्स, और डेजर्ट्स की वैरायटी यहाँ पे एंडलेस है. एंड आई विल ऑल्सो अटैच द क्लिप्स ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट दे सर्व्ड अस. So the moment we enter, it starts with a salad. यहाँ पे salads की बहुत सारी variety थी, and plus since I'm a vegetarian and यहाँ पे vegetarian food इतना ज़्यादा नहीं था, so I was highly dependent on these salads. So daily मैं एक पूरा प्लेट सैलड से फिल करती थी. एंड उसके बाद ब्रेड्स इज समथिंग दैट आई रियली डोंट लाइक, दैट्स वाई मैंने कोई ब्रेड कंज्यूम नहीं किया अपने पूरे ट्रिप पे. एंड इसके बाद ये थोड़े से पीसेस थे, वहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ थी, क्रीम था, एंड ये कुछ नॉन वेज आइटम्स हैं यहाँ पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अमेजिंग फ्लेवर्ड योगर्ट्स थे. Then we used to hop on dessert section where every day I used to eat croissant, and there used to be many variety of cakes starting from muffin, vanilla cake to chocolate brownies to waffles to pancakes to panna cotta and many more endless variety of desserts they used to offer. Hello, so now we are heading towards Gabala and today is our day 2, and raste mein this is a mosque by the name, what's the name? Zuma Mosque. Zuma Mosque. Salam. So Salam. And hi everyone. So they are from Oman. So yeah, we are having a good conversation with them. Salam. You've never been to Oman? No. Come to Oman. Yeah, we will. Yeah, so this mosque is pretty beautiful. I really liked it, and it's compulsory to wear this scarf here. And As women are bound to cover their head. correct. So we got this from the entrance. And we are feeling good. Yeah, we are feeling good. And let me show you the glimpse of this mosque. Let me. So now we have reached Gabala, and Gabala में जो first stop हमने लिया है that is Nohur Lake. नोहूर लेक. एंड ये हमारे पीछे नोहूर लेक ही है. एंड यू कैन सी मेरे पीछे डक्स हैं, एंड ये बहुत क्यूट डक्स है, दे आर प्लेइंग. एंड नाउ विल गो टू रेस्टोरेंट. एंड यहाँ पे बेसिकली ये नोहूर रेस्टोरेंट है जहाँ से नोहूर लेक का व्यू दिखता है. एंड यहाँ पे बोटिंग भी है, बट मुझे बोटिंग बहुत बोरिंग लगती है, सो आई एम अवॉइडिंग दैट. आई नॉट बी गोइंग फॉर बोटिंग. एंड इट कॉस्ट 20 minutes for each boat. Now we are taking our second stop. So second stop में basically we are going to तूफान दाग, and उसके लिए हमें केबल कार करना है. एंड केबल कार काफ़ी मतलब हाइट पे ही हमें पहुँचाएगी, एंड वहाँ से apparently they are saying that the view will be very beautiful. So I'll check it out once I'll reach there. Now we are going to तूफान दाग, एंड हम केबल कार के थ्रू जा रहे हैं. हमने एक्सपेक्ट किया था कि अभी थोड़ी स्नो होगी, बट मुझे लगता है हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं. हमें जनवरी में आना चाहिए था. अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, तो अभी मुझे तो आसपास कहीं नहीं दिख रहा. थोड़ा सा वहाँ इफ यू कैन स्पॉट थोड़ी सी स्नो है. बट आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज शाहदाग. सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि शाहदाग में अच्छा खासा हमें स्नो मिले, सो दैट हम अच्छी आइस एक्टिविटीज कर पाए. सो फाइनली वी हैव रीच तूफान दाग, एंड हमने 2 केबल कार्स हमने चेंज करी. एंड ये बहुत ज़्यादा टॉप पे है, एंड यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस है. बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, एंड यू कैन सी दैट स्नो इज ऑल अराउंड, राइट लेफ्ट एवरीवेयर देयर इज स्नो. सो बहुत ठंड भी लग रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. Done with day 2 of tour, and अब मैं अपने होटल में आ गई हूँ. एंड होटल में I have booked king suite for myself, so let's see how my room is. सो इन आवर होटल वी इवन ट्राई टर्किश बाथ, जो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे. एंड इसे यहाँ पे टर्किश हमाम भी कहते हैं. मुझे थोड़ा सा एवरेज ही लगा. So now we are in Gabala Garden, and today is our day 3. And ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. आई एम श्योर आप पीछे देख रहे हो. दिस इज़ एक्चुअली गिविंग अ स्विट्जरलैंड काइंड ऑफ अ वाइब. बहुत ज़्यादा ठंड है,
एंड बहुत अच्छा वेदर है एंड एयर इज़ सो फ्रेश, बहुत फ्रेश फील हो रहा है। एंड इसके बाद हमें चेकआउट करना है, देन विल गो टू बाकू एंड देन अगेन बाकू से विल गो टू शहदाग। So now I am at Savalan Vineyards and it's a beautiful vineyard. So basically यहाँ पे they will tell us how the wine is processed and made, and after that the tasting will happen. So this is 360-degree view of Savalan Vineyards जहाँ सारे grapes produce किए जाते हैं, फिर उन्हें process किया जाता है, then the wine is made. After 2 years storage. 1 year 1 year fermentation storage. stabilization, 2 years storage, after filling bottle, after drink process, yes. It takes total 3 years time then. Yes, minimum. Minimum. Filling water, how many years we can have it? No problem, 20 years. After filling bottle, only just reserve. So now we are at wine tasting place and we have to taste different kinds of wine, and they have also given us some snacks, so I'm excited. This is white semi-dry wine. Special grape Traminer, harvest time is 2023, alcohol 12.25. Beautiful combination white meat. How's white it? cheese. Really nice. It's very smooth everywhere. So smooth. Fruity, citrus fruity, white flavory. कुबुस्तान बट वोल्केनो, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और यहाँ बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, बट दिस प्लेस इज वर्थ इट। आई विल अटैच द क्लिप्स, ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर पा रही। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड है यार, फ्रीजिंग कोल्ड। ये मड वोल्केनो मैंने क्लाइंब किया था विद द हेल्प ऑफ द ड्राइवर, जो आपने मेरी लास्ट क्लिप में देखा था। वो इतने स्वीट भैया थे, उन्होंने मुझे क्लाइंब करवा दिया था, लेकिन वो खुद फिसल गए थे। हाय, टुडे इज़ माय डे 3 एंड वी आर अगेन बैक टू बाकू आफ्टर 1 नाइट स्टे इन कबाला। एंड आज यहाँ पे काफ़ी शॉपिंग की हमने एंड वी आर एक्सप्लोरिंग 1 नाइट क्लब since I don't think that I'll be coming back to Nizami Street again. So since Christmas is just nearby, so that's why this whole lane is lit up with Christmas decoration, and there's one monkey Santa if you can spot. Cute. So right now I'm sitting at Friends Central Park Cafe and this Friends series is so close to my heart. Literally graduation time में सबसे ज़्यादा time मैंने Friends series में spend किया, इतना ज़्यादा entertaining और amazing series लगता है मुझे। And right now I'm sitting in that cafe and the feeling is so amazing and I'm just loving the vibe of this place. Hi, today is our day 4 of Baku tour and we are going towards Shahdag, and in between there's a stoppage Called Candy Cane Mountain. So we are here at to view the beautiful, Beautiful. I can't say, I have never seen this sort of mountain ever. before. This is beautiful pink, peachy, grayish color kind of mountain, and And it's too freezing. it's too cold freezing over cold here. over here. And I'm And just it's in the love outskirts in of, this weather. It's beautiful. I have no words to describe the beauty of this mountain. And it's time to click some beautiful pictures. And take this beautiful view inside my mind so that I can hold on to this view for so long. Hello from Shahdag. So we are here at Shahdag now. Can you see the view? Snow-capped mountains. So beautiful. So now we are done with Shahdag ice activities and just मैंने अभी होटल में check in किया है and name of my hotel is Shahdag Hotel and Spa. This is one of the best property of Shahdag
And let me just give you the tour of my room and this hotel. So this is the beautiful view from my room. पूरे स्नो कवर शहदाग माउंटेन्स दिख रहे हैं and this view is just so mesmerizing and I'm completely in love with this view. So now we are going to one roller coaster ride जो स्नो के बीच में ही है and I'm very excited for that cause मैंने स्नो के बीच roller coaster ride नहीं किया है. And after that we'll go to Kinloch and Kuba village. ये बहुत old village है यहाँ का. So वो एक्सप्लोर करेंगे. हाय, वी आर जस्ट डन विद आइस रोलर कोस्टर राइड एंड फर्स्ट टाइम मैंने आइस में रोलर कोस्टर राइड एक्सपीरियंस किया. कैन यू सी द आइस बिहाइंड मी? उसके बीच में रोलर कोस्टर बना हुआ था. हाय, सो वी आर एट कूबा एंड कूबा में वी स्पॉट अ हट जहाँ पे एक डिश मिल रही है विच इज़ सो मच सिमिलर टू इंडियन पराठा. बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा डिश मिला है जो कम्प्लीटली इंडियन टेस्ट कर रहा है. सो दिस इज़ माई सेकेंड चपाती. This is Azari Kutab. It is vegetarian, and the beautiful auntie is preparing it. So now we have reached Kinloch village. It is one of the oldest village of Baku, approximately 1000 year old. यहाँ एक बहुत ही beautiful river flow करती है and जिसका sound आपके ears को बहुत peaceful लगेगा. So today is the last day of our Baku tour and we are checking out from Shahdag. एंड ये पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया था हमारा कैप्चर माई ट्रिप एंड आई मस्ट से उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है एंड मैं कम्प्लीटली उनकी सर्विसेज से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ. फ्रॉम बिगनिंग टू एंडिंग मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. पिकअप में, कहीं ड्रॉप में, कहीं चेक इन चेक आउट. ड्राइवर इतना अच्छा दिया था, कार इतनी अच्छी कंडीशन में थी, म्यूज़िक सिस्टम, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट. मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी पड़ी उन्हें. मुझे इवन उन्हें एक बार भी अप्रोच भी नहीं करना पड़ा कि ना मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है. एवरीथिंग वाज सो स्मूथ. एंड आज हमारा लास्ट डे है एंड इसके बाद हमारी थोड़ी सी जगह बच गई है ओल्ड बाकू में. वी विल एक्सप्लोर एंड इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली लाइक 5 to 6 hours. And after that we'll head towards Baku airport and that's the wrap of our trip. And I must say that this place is so beautiful and breathtaking. यहाँ पे सब कुछ है. यहाँ पे beach है, mountains है, nature है, everything is there in one place. So I highly recommend this place to everyone. So now it's time to say final goodbye to Shahdag and I'll miss this place a lot, especially this view. Hi, so we are at Hidar Mosque today and you can see the beautiful view of Hidar Mosque and weather is so windy today. So this is the first time मैं किसी मॉस्क के अंदर गई थी अपनी लाइफ में एंड इसकी नक्काशी इस जगह की इतनी सुंदर थी. आई वॉज जस्ट अमेज्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस मॉस्क. सो वी आर इन दी स्ट्रीट्स ऑफ ओल्ड बाकू एंड ये कंप्लीट यूरोपियन वाइब दे रहा है एंड वेदर यहाँ पे इतना अमेजिंग हो रहा है. आई एम जस्ट एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल वॉक एंड द वेदर एंड दैट टू विद माय बेस्ट फ्रेंड. वी आर इन द मिनिएचर बुक म्यूजियम. सो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी बुक्स है सारी बहुत मिनी मिनी साइजेस में बनी हुई है एंड बहुत सारी लैंग्वेजेस की यहाँ पे बुक है एंड यहाँ पे इवन हिंदी बुक्स भी है. भगवत गीता एंड हनुमान चालीसा और भी हिंदी टेक्स्ट बुक्स है. सो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ म्यूजियम. सो आप ये जो पिक देख रहे हो लेडी का, सो बेसिकली इन्होंने 96 कंट्रीज ट्रैवल किया और वहाँ से उन्होंने ये सारी बुक कलेक्ट की है और म्यूजियम में रख दिया. ये इस म्यूजियम का स्टोरी है. मेडन टार बाकू का बहुत ही फेमस स्पॉट है एंड इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है. बेसिकली फादर अपनी डॉटर की मैरिज करवाना चाहता है एंड डॉटर खुश नहीं होती उस प्रपोजल से. सो वो अपने फादर को बोलती है कि आप मेरे लिए टार बनवा दो, उसके बाद आई विल गेट मैरिड. देन होता क्या है, वो टार के ऊपर जाती है एंड वो जंप कर देती है उस टार से. दिस प्लेस इज आतिशका फोर्ट एंड ये प्लेस हम ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाए और इसकी हिस्ट्री क्या है, स्टोरी क्या है नहीं जान पाए, बस टाइम शॉर्टेज था.
अभी इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, बट स्पेशल पार्ट अबाउट दिस फायर इज़ कि जितनी भी हवा आ रहा है ये फायर बुझेगी नहीं, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। इस फोर्ट में गणपति जी का आइडल है। वेट, लेट मी जस्ट शो यू। So now my trip has come to an end and now I'm standing beside Caspian Sea. ये मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है इस ट्रिप का, एंड इसके बाद एयरपोर्ट जाना है। सो आई जस्ट हैव लाइक 1.5 आवर्स इन हैंड, सो आई थॉट नियर बीच साइड थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ी पीसफुल वाइब्स लेते हैं इस जगह की। एंड आई एम इन लव विद दिस बाकू प्लेस, अजरबैजान, एंड आई होप आई विल कम हियर सून अगेन। So now it's time to spill the beans. So Azerbaijan एक Muslim country है where 96% of the population is Azeri Muslims and approx 1400 to 1500 people are Pakistani Muslims, and the remaining है that is a mixed community. So first problem that generally you can face at Azerbaijan is language problem. Since वहाँ पे English बहुत ज़्यादा कम लोगों को समझ आती है, वी नो दैट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम सबको कनेक्ट करता है, बट वहाँ पे थोड़ा सा इशू इंग्लिश के साथ भी होगा। So what I advise that you should always have the translator app ready or Google Translate always working. And apart from that, I would like to tell, अगर आप अपना बाकू का ट्रिप किसी टूर एजेंट से बुक करवा रहे हो, then definitely tell them that आपको ऐसा ही ड्राइवर चाहिए जिसे क्लियर इंग्लिश आती हो, बिकॉज वहाँ पे मैंने जो सुना है लिखते हैं इंग्लिश ड्राइवर लेकिन ड्राइवर को इंग्लिश नहीं आती है। और what you can say that if you're not comfortable with English language, आप डिमांड कर सकते हो that you need a driver who can speak Hindi, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं जो दे आर वर्किंग एज ड्राइवर्स सो और टूर गाइड, सो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। Second thing that I would like to share that if you are someone who is complete vegetarian like me and जो eggs भी नहीं consume करते हैं, उन्हें ब्रेकफास्ट टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, सिंस बुफे में आपके पास ऑप्शंस रहता है ज़्यादा नॉन वेज का। वहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट वेज, वेज में आपको सैलड्स मिल जाएंगे, फ्रूट्स मिल जाएंगे एंड डेजर्ट्स मिल जाएंगे, एंड थोड़ा सा राइस आपको प्लेन राइस विद लिटिल बिट पीसेस ऑफ कॉर्न, यही ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट टाइम में थोड़ा सा स्ट्रगल है। इफ़ यू आर समवन हु एंजॉय सैलड देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंस मैं वहाँ पे 6 nights 7 days कंप्लीटली मैं सैलड्स और फ्रूट्स पे ही रिलाय रहा था। एंड ऑफकोर्स ब्रेड्स तो हैं, ब्रेड्स कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल ये सब तो स्टैंडर्ड है, वो तो है। So that is something that you can consume at the time of breakfast. Otherwise, if I talk about lunch time, dinner time, there are Indian restaurants जिनके केयर टेकर पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह ग्रीट करते हैं। वहाँ पे लाइव म्यूजिक भी प्ले होता है, जिनकी सॉन्ग की वॉइस इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब दैट्स एक्चुअली यू फील दैट आतिफ असलम इज सिंगिंग लाइव। सो या आफ्टरनून एंड लंच टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, सो व्हाट यू कैन डू इज आप थोड़ा सा ड्राई फूड कैरी कर सकते हो, लाइक थेपला, फाफड़ा, या घर पे कुछ पराठे जो 2-3 days चल जाए, या रेडी टू ईट फूड थोड़ा ले आए ब्रेकफास्ट पे, लाइक पोहा, उपमा, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा। एंड दिस ऑल इंडियन रेस्टोरेंट्स आर इन निज़ामी स्ट्रीट बाकू। एंड इफ आई टॉक अबाउट गबाला एंड शहदाग, गबाला एंड शहदाग में मुझे प्रॉपर कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं दिखा, एंड ऑफकोर्स दे आर रेस्टोरेंट्स जहाँ पे आपको वेज में मार्गरेटा पिज्जा मिल जाएगा, वेज व्हाइट सॉस पास्ता मिल जाएगा, तो ये चीज़ें तो फ्रेंच फ्राइज, ये बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएगी। थर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, दैट यू शुड डेफिनेटली डाउनलोड दिस ऐप बाय द नेम बोल्ट। ये एग्जैक्ट ऊबर जैसे इंडिया में चलता है वैसे वहाँ पे बोल्ट चलता है। इसका इंटरफेस भी बहुत सिमिलर ऊबर की तरह है। यू जस्ट हैव टू टाइप अ डेस्टिनेशन एंड यू हैव टू बुक, एंड वहाँ पे भी साइजेस होता है, आपको कौन सी कैब बुक करनी है, मिनी और द सेडान, एंड अकॉर्डिंगली द फेयर विल कम इन मन्नट्स, एंड देन यू हैव टू बुक। एंड वहाँ पे मैंने जो वेटिंग टाइम देखा, वहाँ पे वेटिंग टाइम एक्चुअली बहुत कम था, विद अंडर 5 minutes मेरी सारी कैब आ रही थी। सो आप किसी से भी पैकेज अपना बुक करो, आप टूर करो एंड इवन इंडिविजुअल भी करो, तो भी 7, 8, 8:30 तक ड्राइवर का टाइम हो जाता है, वो अपने घर चले जाते हैं। सो उसके बाद अगर आपको एक्सप्लोर करना हो तो बोल्ट आप कर सकते हो। लाइक निज़ामी स्ट्रीट एक ऐसी स्ट्रीट है जो बहुत हैपनिंग स्ट्रीट है, वहाँ पे वो रात के 3-4 बजे तक खुली रहती थी। सो आई एडवाइज यू कि दैट निज़ामी स्ट्रीट आप अच्छी तरह एक्सप्लोर करें, बिकॉज वो बहुत अच्छी स्ट्रीट है। तो उसमें आपको कुछ टेंशन नहीं होगी, आप कैसे वापस आओगे नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे बोल्ट ऐप पे हमेशा कैब्स अवेलेबल रहती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर वेरी फेमस क्लब बाय द नेम ऑफ एक्स्ट्रा क्लब, जो रात को ही स्टार्ट होता है, मतलब रात को क्राउड वहाँ पे अच्छा आना लगता है। तो वो भी आई थिंक आपका टूर में नहीं इंक्लूड होगा, दैट इज फॉर श्योर। So you can use the Bolt app and you can explore that place. And fourth information, which is very important information, that वहाँ पे
मोस्टली जितने भी फोर्ट्स मॉन्यूमेंट्स काइंड ऑफ प्लेसेस है म्यूजियम्स वो सारे 7 PM से पहले क्लोज हो जाते हैं और मैक्सिमम लास्ट 7 PM। कुछ प्लेसेस तो 6 PM भी क्लोज हो जाती है। सो वट आई एडवाइज इज दैट यू ट्राई टू स्टार्ट योर डे अर्ली एंड अगर आप बहुत ज़्यादा लेजरेबल बहुत कंफर्टेबल ट्रिप चाहते हो तो आई एडवाइज कि आप थोड़े डेज एक्स्ट्रा रख लो। सो या अदरवाइज आप बहुत मिस आउट कर जाओगे प्लेसेस पे, देन यू विल फील यार ये भी रह गया वो भी रह गया। सो अकॉर्डिंगली यू प्लान। अगर आप 10:30 तक निकल जाते हो डेली अपने होटल से देन यू कैन कवर लॉट ऑफ प्लेसेस। एंड अगर आप थोड़ा सा लेट निकलते हो लाइक 12:30 तो आराम से उठते हो ब्रेकफास्ट करते हो देन आई एडवाइज आप हर एक जगह को वन डे एक्स्ट्रा दो। So you can definitely consider this place if you are planning a trip in 2025. Also मैं description box में day wise जहाँ जहाँ मैं गई थी मैं mention करूँगी and also you can ask me in the comment section आपको कोई मुझसे help चाहिए हो तो I would love to help you guys. So that's all from my side today. I'll see you soon. Till then, bye bye. Take care.